Hello and good evening to good morning to everyone. I hope I am audible. Hello and good morning to everyone. I hope I am audible. If yes, please let me know that I am audible. Yes, Sakshi, thanks. Thanks for the. So, guys, just we are going to start. Yes, good morning, Laksh, Divya, Ayush. We are going to just start in a minute, and people are joining. So let all join the session so we can start. Yes, as we have seen, the topic for today is going to after the function, and we have discussed the function, the type of functions like log, exponential, and everything. Uh, we have quite done everything in the functions, and it's a long process that we have done in the functions. But still, I will say that function is not have been ended क्योंकि फंक्शन को हम अभी end नहीं मान सकते क्योंकि अभी बहुत ही important topic जो कि आप कह सकते हो कि फंक्शन से रिलेटेड ही है where maxima and minima has remained. So we have to complete the maxima minima in itself, as well as we have to look for the other sort of things in like maxima minima is not about the only function, but it's about some basic generic rules of the maxima minima जिसमें हम लोग क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की जाती है और वी हैव टू फाइंड देम. सो जिसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे. ठीक है. So maximum minima and lot of other stuff which is very important also for examination point of view, because we are at the end of finishing the algebra, or more maybe I will say ki finishing the major part of the syllabus. So we will have to just do one thing. We have to just complete it, and then we have to concentrate totally on the modern math part, that is our permutation, combination, probability. So anyone who has been a query about the syllabus and the things that how we're going to complete it, we are going to complete in this month. I will say that thing maximum in this month, or three, four more classes I need in what I will say that in algebra, not in algebra, that is in the modern maths part. So I think any one of you guys don't have to be worried about the completion of syllabus. So you can now start taking mocks. You can start taking the all India mocks and everything that is needed. तो आप लोग उस चीज़ों पे अपना concentration ले आओ कि how you are practicing and how you are taking the mocks, because the important part is taking the mocks and important part in getting in the zone of studies जहाँ पे आपको अपने आप को टेक्स्ट भी करना है, because CAT notification has been out and you all have to appear for the mocks, start appearing for mocks, take the sectional test or whatever. तो अभी तक जो कि अलग अलग पार्ट में कर रहे थे कि मैथ का एक टॉपिक टेस्ट दे दिया, एक कर लिया, वो कर लिया, अब वो बंद करके थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट एंड कंप्लीटली ऑन मॉक्स पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि अब एक बड़े पिक्चर को देखना जरूरी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी एरिया, और उसमें हम लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. So it is my suggestion to everyone to go on this side and try to do as much as possible, because we have completed algebra, we have completed the numbers, we have completed I think arithmetic भी पढ़ लिया है आप लोगों ने, and you are on geometry, because I have seen in the last some classes that geometry is happening. So geometry भी हो ही रहा है. So बचा क्या मॉडर्न मैथ्स, दो तीन सवाल मॉडर्न मैथ्स के, ऐसे भी क्वेश्चंस होना नहीं होना इज मोर लाइक अनदर टॉपिक. लेकिन फिर भी you don't have to worry about that, and you should try to do problems जो कि आपको करना शुरू करना पड़ेगा. तो सिंपल सी बात यही है. So now what we deal with in the maximum minima, that's my concern कि अब maximum minima शुरू करते हैं, तो maximum minima की बात करते हैं. ठीक है. maximum minima में क्या हमें पढ़ना है. सो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी एक इक्वेशन दिया है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अगर ये मुझसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो दिस इज इन साइड माई दिस चैप्टर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जिसके बारे में आज हम लोग
पढ़ेंगे या सीखेंगे, ठीक है। सो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग अभी भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी वी हैव नॉट स्टार्टेड। So in this maximum minimum, what the thing we need to understand is finding maximum or the minimum values for any expression, I must say, or function, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो, सो देयर आर सम टेक्निक्स जिससे कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाउंड करते हैं किसी भी फंक्शन किसी एक्सप्रेशन का। तो डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट द थिंग वी हैव बीन आस्क्ड, और उसके बेस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बट सिंस दिस क्वेश्चंस and in some part of this maxima minima chapter we will have to go on the graphs also, कि graphs को भी मुझे एक बार आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से graphs खींचे जाते हैं। so अगर आप graphs के थ्रू करोगे तो it will be bit easier to understand how well you going to the maxima minima किस तरीके से किया जाता है। एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा जो एज ए टॉपिक होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब कैलकुलस में, कैलकुलस बेसिकली हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट समथिंग, डिफरेंशिएट मतलब हम किसी को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, तो वहां पे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। बट since the calculus is not been the topic in any one of your syllabus, so हम calculus की बात नहीं करेंगे। we have to use some conventional methods for solving the maxima and minima problem, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि maxima minima is a topic from calculus, you have to understand that, because you are not going to ask about the trigonometric function, नहीं पूछा जाएगा कभी आपसे, लॉग का मैक्सिमम मिनिमा शायद नहीं पूछा जाएगा। जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शंस की मोस्टली बात की जाएगी। लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब का मैक्सिमम मिनिमा मोस्टली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इनकी पूछने की जरूरत ही नहीं है। दे डोंट वांट टू आस्क यू द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एनीथिंग व्हिच आर नॉट इन द सिलेबस, अदरवाइज इट विल बी टोटली इन द मैथ्स, क्योंकि फिर वो कैलकुलस आ जाएगा। सो हमें बेसिकली जो यहाँ पे जानना है वो है कि मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। सो अलजेब्रिक फंक्शंस की बात आती है तो मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आता है, सबसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो फर्स्ट हमारे सामने होता है वो होता है कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, क्योंकि दैट वाज द वेरी वेरी क्रिटिकल वन। क्वाड्रेटिक जब इक्वेशंस भी हम लोग पढ़ रहे थे तो वी हैव सीन दैट थिंग कि हाउ वी हैव सेड अबाउट टू फाइंडिंग द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो जब कभी कभी क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक मींस quadratic expressions means that is in the form of degree 2 expression, x square plus bx plus c form का अगर expression होगा, ठीक है। and we have to find maxima or minima for this type of expression. how we are going to do it? हम लोग कैसे करते थे? anyone have remember that thing? किसी को आइडिया है किस तरीके से we proceed in finding the maximum minima of the quadratic functions? b square by 2 plotting graph. Yes, so it's wonderful. Plotting graphs. Yes. So
लुकिंग फॉर मैक्सिमा मिनिमा में हम लोगों ने जैसा दिखा था कि दो तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ वी फाइंड इट कि फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट इज द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दैट इज x square. First the thing that we need to look is the coefficient of x square. ठीक है, मतलब a की वैल्यू क्या है यही हम लोग देखते थे. a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या a की वैल्यू नेगेटिव है, दोनों में एक फर्क क्या होता है. अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो द कर्व विल बी ओपनिंग अपवर्ड. ठीक है, इस तरीके का कर्व बनेगा एक्स स्क्वायर. आई एम जनरलाइजिंग कर्व एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कर्व जो होगा फॉर ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ए के लिए इट विल बी फॉर्म लाइक दिस. एंड इफ इट इज नेगेटिव, अगर एक कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर ए लेस देन 0 विल बी लुक लाइक दिस. मतलब ए उल्टा की तरफ दिखेगा, मतलब इट्स ए इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व व्हिच कैन बी ड्रॉन फॉर दिस मैक्सिमा मिनिमा. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पहली चीज जो हमें देखनी होती है वो साइन ऑफ ए देखना होता है. दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना होता है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट देखेंगे तो अगर ए पॉजिटिव है तो इसका कर्व अपवर्ड पैराबोला बनेगा. दिस इज कॉल्ड एन अपवर्ड पैराबोला या अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, व्हाटएवर यू वांट टू से, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. क्योंकि किसी भी quadratic shape is always going to be parabola and this will be called as downward parabola. ठीक है, इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं when a is less than 0. यहाँ पे a greater than 0 में आपको एक बहुत क्लियरिटी दिखेगी कि this is going to form a maxima or minima. Whenever it is upward parabola, it is going to form a maxima or minima. Tell me. It is going to form a minima because my curve, क्योंकि ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है इसका मुझे कुछ नहीं पता है. इट इज गोइंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, बेसिकली इट इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हियर. बट यू कैन फाइंड इट कि जब कर्व इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि मैक्स मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिलेगी. तो वी विल फाइंड मिनिमा व्हेन वी हैव ए अपवर्ड पैराबोला, हमेशा मिनिमा मिलता है. और व्हेन वी हैव ए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इस तरीके का पैराबोला अगर खींचा हुआ है तो लोवेस्ट वैल्यू का मुझे पता नहीं है. लोवेस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. देखो दिस इज नेगेटिव y, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ नेगेटिव वैल्यू जा रही है. एंड देयर इज वन पॉइंट वेयर वी कैन फाइंड आवर मैक्सिमम. सो पहली चीज कि a का साइन देख के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख के वी कैन टेल कि वेदर वी आर गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमा और वेदर वी आर गोइंग टू फाइंड द. Is it fine? What is the value of maximum and minimum? ठीक है, कि किसमें मैक्सिमम मिलेगा किसमें मिनिमम मिलेगा ये मुझे क्लियर हो रहा है. नाउ दीज 2 पॉइंट्स आर बेसिकली रूट्स. जो हमारे रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, जिसको मैं अल्फा बीटा कहता हूँ, वो दो जगहों पे एक्स एक्सिस को हमारा कर्व कट करता है. अल्फा एंड बीटा पे एक्स एक्सिस को कट करता है. एंड जो हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा जिसको हम लोगों ने बोला था उस समय थीटा. थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, आइदर सम ऑफ द रूट, और इट विल कॉल्ड एज माइनस बी अपॉन 2a पे हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी हैज बीन क्वाइट आइडिया अबाउट इट. माइनस बी अपॉन 2a पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, इसको देखने के लिए जस्ट वी हैव टू लुक द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ माइनस बी अपॉन 2a. माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमा मिलेगा, किस जगह पे मैक्सिमा मिलेगा या किस जगह पे मिनिमा मिलेगा, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल. और अगर तुमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात करता है, इफ मैक्सिमम वैल्यू स्लॉस minimum value will require,
अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कभी से बात होती है, कभी पूछा जाता है, तो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू व्हिचएवर बीन अप्लाइड। ठीक है, तो बस तुमसे पूछा जाएगा कि एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो यू हैव टू जस्ट पुट x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम। दिस इज इट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस टू कर्व्स एंड दिस पोजीशन कि कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। सो वी डायरेक्टली गो ऑन द क्वेश्चन कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी बात करते हैं। सपोज यू हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड द मैक्सिमम स्लैश मिनिमम। इनको पता नहीं है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वॉट एवर क्या आएगा, पहले ही बताना है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और दूसरी चीज बतानी है कि वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वॉट एवर एप्लीकेबल है कौन सी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। टेल मी व्हाट इज कमिंग इन योर आंसर्स। दूर दूर आराम से करो, आंसर में गलती नहीं करना है। या आने का मतलब नहीं है कि गलत करना है, आने का मतलब है कि हमें सही करना है। दैट शुड बी माय कंसर्न। गाइस डोंट बी इन हरी, कहीं भाग नहीं रहे हम लोग। मिनिमा, आई थिंक एवरीवन विल एग्री ऑन इट कि मिनिमा मिल रहा है। किसी का एग्री नहीं हो रहा है, ऐसा कोई है जो एग्री नहीं हो पा रहा है इस बात पे कि मिनिमा मिल रहा है। वी आर हैविंग द मिनिमा हियर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखें, व्हाट यू विल लुक एट फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, मतलब मेरा सेफ है वो अपवर्डेड पैराबोला होगा। अपवर्डेड पैराबोला का मतलब माय वैल्यू विल बी क्रिएटेड, दिस एक्सप्रेशन विल क्रिएट ए मिनिमा। ठीक है, अपवर्डेड पैराबोला का मतलब है कि ये मिनिमा जरूर यहाँ पे मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ पूछा जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 0, इंफिनिटी, यस गुड, मैक्सिमम विल बी इंफिनिटी, क्योंकि आइदर मिनिमा ही मिलता है या मैक्सिमम मिलता है, तो इट विल बी प्लस इंफिनिटी एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए पहले मुझे मिनिमा का पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमा पॉइंट, जिसको मैं थीटा बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको अलग बोलते हैं, नाम से दिक्कत ना हो। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे मिलेगा, वेयर बी इज व्हाट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस x, तो ये बन गया -6 and a is the coefficient of x square 2 into 1, so this is our -3. -3 is our minima point guys, remember it, -3 is my minima point. ठीक है, it is not the value of minima, -3 is my minima point. ठीक है, मिनिमा पॉइंट का मतलब है कि x इज इक्वल्स टू -3 पे मेरी मिनिमा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमा की वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट की वैल्यू है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन में x इज इक्वल्स टू -3 रख दो, कैलकुलेट इट, -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4, what you will getting,
minus 5. So this is my value and this is my answer. So don't confuse yourself with the minimum point and minimum value. ठीक है, like in the last देखो यहाँ पे जो थीटा निकाल रहे थे, थीटा इज दिस पोजीशन, नॉट द पोजीशन ऑफ दिस वैल्यू, नॉट द वैल्यू ऑफ दिस कर्व. थीटा इज द पोजीशन ऑफ द एक्स एक्सिस. मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे मिनिमम या मैक्सिमम मिल रहा है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ. ये नहीं कि मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा था. इज दिस फाइन एवरीवन? We have to understand this thing, how we getting a maximum or minimum in a quadratic. जब भी कभी क्वाड्रेटिक होता है तो इस तरीके से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक से आगे बढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक वी हैव डन a lot of thing in the maximum. Even you can find this type of question in your sheet of quadratic. क्वाड्रेटिक की शीट में भी काफी ज्यादा इस तरीके के मैक्सिमम मिनिमम या क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, सो जस्ट लेट थ्रू one more question here so we can move forward to the other type of maximum minimum. कहीं पे ऐसा लिखा है f x square plus x plus 1 is equals to 0. It is a quadratic expression has both roots real and negative. दोनों रूट्स हैं वो रियल और नेगेटिव हैं. ठीक है, find the minimum possible value of a. So this is my question. इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. Yes, look at this. बोल दिया गया यहाँ पे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछ रहा है. ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट रियल एंड नेगेटिव. दोनों रूट रियल हैं और दोनों रूट नेगेटिव हैं. ठीक है, तो मुझे बताना है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए. क्या होगा ए का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या होगा? ये बताओ रियल रूट के लिए क्या होता है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर रियल रूट? व्हाट आर द कंडीशन फॉर रियल रूट? रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में? Yes, good, Astha, wonderful. D is greater than equals to 0. Can we say this? This is the basic condition for the real root. D is greater than equals to 0. ठीक है, बोथ रूट रियल एंड नेगेटिव. यहाँ नेगेटिव से हम अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लें, रियल वाले को देख लें. रियल का मतलब यही होता है d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे d की वैल्यू पता करो. d इक्वल्स टू क्या होगा फॉर दिस एक्सप्रेशन? d इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac. लेकिन बस b की जगह यहाँ पे a दिया हुआ है, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 4ac. मतलब 4 टाइम a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो इट विल बिकम
ए स्क्वायर माइनस 4। इज इट फाइन? ए स्क्वायर माइनस 4 बनता हुआ दिख रहा है अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो। अब इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट इज बेसिकली ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बन गया। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? ए स्क्वायर minus 4 can be written as what? A plus 2 and a minus 2 greater than 0। मुझे a की वैल्यू बताना है प्लस माइनस 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? नंबर लाइन यूज करेंगे, a का नंबर लाइन यूज करते हैं। दिस इज -2, एक पॉइंट -2 जहाँ पे 0 हो रहा होगा और एक टाइम +2 जहाँ पे 0 होगा। चेक कर लेंगे किसी वैल्यू को रख के, 0 रख के चेक कर लो। 0 रख के a की वैल्यू चेक करोगे तो दिस विल बिकम +2, दिस विल बिकम -2। तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो इस रीजन में आ रहा होगा पॉजिटिव और इस रीजन में आ रहा होगा पॉजिटिव। मतलब इफ वी चेक फॉर द वैल्यूज ऑफ ए, मुझे पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है? -∞ से लेके -2 तक ए की वैल्यू मिलेगी, और 2 से लेके फिर +∞ तक मिलेगी ए की वैल्यू। मतलब ए कैन बिलोंग्स फ्रॉम -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके +∞, ठीक है, यही है, ये चीज मुझे मिली है। -∞ से लेके -2 एंड फ्रॉम 2 टू लेके इन्फिनिटी। नाउ यहाँ पे दिस पार्ट विल कम इन प्ले, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि रूट्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स की वैल्यू नेगेटिव है if रूट्स आर नेगेटिव। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट इज, सम ऑफ रूट इस इक्वेशन में क्या बनेगा? -b/a होता है। सम ऑफ रूट विल बिकम व्हाट? सम ऑफ रूट विल बिकम -a। यस और नो? यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या बनेगा? -a/1 बनेगा, तो दिस विल बिकम -a, ठीक है। अब दोनों रूट, अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो उनका सम क्या होना चाहिए? अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो उनका सम भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यस और नो? अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो उनका सम भी नेगेटिव होना चाहिए, और उसकी वैल्यू आ रही है -a के बराबर। ए नेगेटिव है, इसके नेगेटिव होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए? ए को क्या होना पड़ेगा? अगर ये पूरा नेगेटिव बनना है, ऑलरेडी -a है, तो ए को क्या होना पड़ेगा? अगर ए नेगेटिव वैल्यू लेगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव, बट ए हैव टू बी व्हाट? फॉर दिस ए हैव टू बी पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? इस रीजन में दिख रहा है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में शुरू हो रही है कि पॉजिटिव वैल्यू। तो व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? एंड लुक एट इट, ए की वैल्यू पॉजिटिव कहां शुरू है? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है? व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए? क्या +2 के बराबर दिख रहा है? This will be +2 and this will be my answer. So for getting the maxima minima part of the quadratic, I urge everyone to please go and revise once the quadratic. Quadratic का maximum minimum मैं उस समय बताया था जब मैंने पढ़ाया था, तब भी quadratic जब हम लोग कर रहे थे तब भी we have seen कि this is going to very of paramount importance, बहुत ज़्यादा important हो जाता है maximum minima for this part, ठीक है। So everyone have to revise it, otherwise quadratic में maximum minima is very difficult to understand, ठीक है। मैं फिर से एक बार आप लोग से बोलूंगा कि आप लोग एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करो। Is this fine? So this is type 1 from the maximum minima when we can have the quadratic expression
एंड दे कैन आस्क यू अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन किए, दोनों में अलग अलग हम लोगों ने चीजें देखा है। जब कभी यहाँ पे रूट के रिलेटेड पूछा जा सकता है या एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा सकता है, वॉट एवर दे कैन आस्क, बट द बेसिस फॉर ऑल दिस थिंग विल बी इनसाइड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये सारी बातें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट what we are going to do is this fine? You have got it, what they can be asked in the quadratic? Yes or no, guys? Please tell. You have got what they can ask in the quadratic and you can do it. Yes, good. अब one more question of this type of इस टाइप का और कहाँ से क्वेश्चन है भाई? Yes, you have to use identify where to use inequality because maximum minima में बहुत जगह inequality solve करना होगा. It's not about the equation only. बहुत जगह होगा कि ऐसी वैल्यू बताओ जहां से इस वैल्यू की ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, तो इनइक्वालिटी कैन बी पार्ट ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, द टाइप 2 प्रॉब्लम when we look at the sheet, when I discuss the sheet, I will look for the some more problems. First let me go through the fundamentals of maximum minima here. ठीक है, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मैक्सिमम मिनिमा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मैक्सिमम मिनिमा का, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस आइडेंटिटी की बात हम लोगों ने शुरुआत में की थी, व्हेन वी हैव डिस्कस द प्रोग्रेशन, व्हाइल डिस्कसिंग द प्रोग्रेशन वी हैव सीन वन मोर थिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया था उस समय, किसी को याद है व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन व्हेन वी आर डूइंग द प्रोग्रेशन? वी हैव टॉक अबाउट अर्थमेटिक मीन and we have talked about ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, दोनों की बात की थी, अर्थमेटिक मीन की बात की थी और ज्योमेट्रिक मीन की बात की थी। यस और नो? यस, अर्थमेटिक मीन मतलब होता है इट इज सेम एज द एवरेज और ज्योमेट्रिक मीन इज द अंडर रूट। जैसे इफ ए बी आर टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स दिए हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन विल बिकम a plus b by 2 and इनका ज्योमेट्रिक मीन विल बिकम दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a into b। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नंबर ऑफ केसेस के लिए ऐसे निकाले जाते हैं। अगर तीन नंबर दिए हैं, if a b c आर थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स दिए हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन विल गोइंग टू बी a plus b plus c upon 3 and its geometric mean will become cube root of a into b into c। ठीक है, इस तरीके से n नंबर्स के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। एंड देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा। मतलब अगर आप कैट का पेपर दे रहे हैं और आपके दिमाग में वाली आइडेंटिटी है और आप अगर इसका यूज करना जानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल नॉट गोइंग टू अनडन, दैट कैन बी डन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब कैट का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो यहीं आके रुक जाता है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द लिबर्टी टू गेट इन द कैलकुलस, दे आर नॉट हैविंग द लिबर्टी टू गेट इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत सारे पार्ट जो लोग इसको कहते हैं ना कि मैथ का पेपर बहुत टफ है, बेसिकली मैथ कभी था ही नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैथ में वो आगे जाएंगे तो दे विल यूज दैट रिलेशन m is greater than equals to 0। हर साल मैं एक चीज बोलता हूँ कि किसी को अगर ए वाला इनइक्वालिटी यूज करना आ गया तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आज के बाद तुम जाओगे तो यू विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच फॉर लुकिंग द प्रॉब्लम। तो यू विल फाइंड इट कि एम इज ग्रेटर देन जीएम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम का यूज जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं?
जैसे इसके लिए मैं सिंपल एक क्वेश्चन की बात से शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँ इफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव numbers are 15 and if the sum of the 3 positive numbers are 15, then find the value of find the maximum value of product of numbers, ठीक है। बोल रहा है कि सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 15, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। क्या ये दिख रहा है किसी को, कैसे कर सकते हैं? एनीवन, can we have any idea what is actually going on here? Sum of 3 positive number is 15, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ दिख रहा है तुम लोगों में से किसी को? Tell me. ऐसे लिख सकते हैं, let the number be A, B and C, ठीक है। 15 is the sum of the numbers, मतलब A plus B plus C की वैल्यू दी हुई है 15 के बराबर होगी, ठीक है। सिर्फ मेरे पास एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटी यूज करना सिखाते हैं। एम इज ग्रेटर देन जीएम। एम अगर 3 नंबर का एम लिखेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। और जीएम लिखेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, ए इंटू बी इंटू सी। यस और नो? ये सही है या गलत है यहां तक? हैव यू गॉट दिस? समझ में आ रहा है? नाउ लुक एट इट, we have actually given you the sum of 3 positive number as 15। इसका मतलब है मैंने sum यहाँ पे दे दिया है। So when you put at it, it will become 15 upon 3 should be greater than cube root of ABC. This is going to be 5, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ABC will be less than equals to 5, ठीक है। जब क्यूब रूट ऑफ ABC is less than equals to 5 है, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब पावर 3 कर दो, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट हटाना है तो तीनों साइड पावर क्यूब करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम व्हाट, ABC विल बिकम लेस देन व्हाट, 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 विल गोइंग टू व्हाट, क्या बनेगा? वन 125। तो बोल रहा है कि ABC शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 125। तो मतलब ये बता रहा है कि ABC की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 125। So look at how this is going to use. Have you got this? How this inequality will be going to in use? AM is greater than GM. On this, there is a very important result. I will say that please mark it everywhere when you write it, ठीक है। इसी जगह से एक चीज एप्लीकेबल हुई, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक चीज का डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है। बिफोर डूइंग इट देयर इज वन डिक्लेरेशन वी एवरीवन हैव टू मेक, ऑब्वियसली, बिकॉज इन द लास्ट थिंग आई हैव रिटन वन थिंग, द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। मैंने ये बोला पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात की है। लुक दिस रिजल्ट होल्ड्स, दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, लेकिन एक ट्रिक है इसमें, सिर्फ एक ही
कैच पोजीशन है कि इट इज एप्लीकेबल व्हेन द नंबर्स आर पॉजिटिव, जब नंबर सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई नंबर निगेटिव हुआ तो ए इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड नहीं करेगी, रिमेंबर दिस थिंग। सो क्वेश्चन में एक किसका क्वेश्चन है, एम इज ग्रेटर देन जीएम पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वहां पे पहले ही मेंशन किया रहता है पेपर में कि these are 3 पॉजिटिव नंबर या 2 पॉजिटिव नंबर या 4 पॉजिटिव नंबर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस आर दे एक्चुअली आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग दिस एम इज ग्रेटर देन जीएम, ठीक है। क्योंकि जहां भी पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि फिर पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव वेरिएबल्स के लिए ही आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती है। अदरवाइज पॉजिटिव अगर नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी ही, ठीक है। तो देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट, प्लीज नोट इट डाउन कि एम इज ग्रेटर देन जीएम। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज ओनली, ठीक है। अगर आपको कभी नेगेटिव नंबर है तो जरूरी नहीं है कि एक क्वांटिटीज आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक नंबर लेते हैं -2 -4 -6, सपोज दिस आर माय नंबर -2 -4 -6, ठीक है। अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालने जाएंगे तो इट विल बी गोइंग टू -4 -2 -6 डिवाइडेड बाई 3। कितना है अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन विल बी -12 divided by 3 -4, and if we find the geometric mean for the same, it is the cube root of product, that is -2 -4 and -6। look at it, what is it basically getting, -2 -4 -6 कितना आएगा? This is -8 +8 +8 and 6 -48, cube root of -48। this is a real number, this is a imaginary, cube root of, so you can't अंडर रूट -48 का क्यूब जब निकालोगे तो यू कांट गेट द वैल्यू। अगर इसकी क्यूब रूट की वैल्यू निकालते हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू सेटिस्फाई एम ग्रेटर देन जी, कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फॉर नेगेटिव क्वांटिटीज, अगर एक भी नेगेटिव है तब भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे नेगेटिव होने चाहिए, अगर एक भी नेगेटिव है तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर नेगेटिव क्वांटिटी m is greater than gm does not hold, ठीक है। जस्ट कीप इन योर माइंड, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि m इज ग्रेटर देन gm तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास सिर्फ क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटीज होनी चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें एप्लीकेबल हैं वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। इज दिस फाइन? यस नो? क्योंकि इसी के बेस पे एम इज ग्रेटर देन जीएम के बेस पे वी विल हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कमिंग नाउ, वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कमिंग नाउ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। व्हाट आर दैट रिजल्ट्स? फर्स्ट इसको मैं लिखूंगा फॉर पॉजिटिव वेरिएबल्स, यहाँ पे दैट शुड बी रिटन पॉजिटिव वेरिएबल्स, मतलब है पॉजिटिव वेरिएबल से पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इफ द सम ऑफ वेरिएबल्स इज ए कांस्टेंट, ठीक है। ये दिया गया कि अगर सम ऑफ वेरिएबल दिया है और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर है, सम ऑफ द वैल्यू वेरिएबल इज कांस्टेंट, देन प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल will have maximum value when the
variables will be equal. Understand what I have written? For positive variable, if the sum of the variable is constant, ठीक है? If the sum of the variable is constant, like in the last question, a plus b plus c is equals to 15 दिया था, ठीक है? a plus b plus c is equals to 15 दिया था. If the sum of the variable is constant, then product of the variable will have maximum value. तो मैंने पूछा था कि ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए इंटू बी इंटू सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट किया, ठीक है? एम इज ग्रेटर देन जी एम. लेकिन इसको डायरेक्टली इसी रिजल्ट से डायरेक्टली हमने ए वाला स्टेटमेंट लिखा है, ए वाला स्टेटमेंट लिखा है, वो डायरेक्टली लिखा है उसी रिजल्ट से. यहाँ पे मैंने बोला कि the product of the variable will have maximum value when the variables will be equal. मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा when a is equals to b is equals to c के बराबर. सो a plus b plus c की वैल्यू 15 के बराबर है, और मैंने बोला कि मैक्सिमम तब होगा जब a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू के बराबर होगी. तो तीनों की वैल्यू किसके किसके बराबर होनी चाहिए? a शुड बी इक्वल्स टू 5, b should be equals to 5 and c should be equals to 5. yes or no? 5 5 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों जब सेम वैल्यू होंगी तो this should also be 5. so now multiply them for the maximum value. For maximum value of abc, what we have to multiply them? 5 into 5 into 5. this will become what? 125. समझ में आया डायरेक्ट रिजल्ट का कैसे यूज किया मैंने? yes or no? this is a very important statement, remember it. आपको ये मैंने सबसे पहले इसको एम इज ग्रेटर देन जीएम से करके दिखाया इसलिए क्योंकि एक कहां से आया, अगर कभी तुमसे पूछा गया किसी ने तो यू कैन टेल इट कि भाई कहां से आया, ठीक है? लेकिन दिस आर बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ उसको जनरलाइज कर दिया गया एज ए रिजल्ट फॉर्म में कि अगर तीन वेरिएबल हैं, तीनों पॉजिटिव हैं और तीनों का सम अगर कांस्टेंट के बराबर है तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन द वेरिएबल विल बिकम. This is very important here guys. अब तुम इस पे देखोगे कि इसमें तमाम सारे क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे इतना लिख लिया सबने, समझ में आ गया सबको? एवरीवन हैव गॉट इट? यस और नो? दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि कैट में जो हम लोग बोलते हैं ना कि इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं होती, आगे बढ़ते ही नहीं है. दिस इज द मैक्सिमम थिंग दे कैन आस्क. यस, इसी रिजल्ट के में बहुत सारे मैनिपुलेशन करके दे कैन आस्क, ठीक है? लेकिन कभी भी अगर सम दिया है और प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो तुमको समझ जाना है कि ए इज ग्रेटर देन जी कहीं ना कहीं से आ रहा होगा उसके सिनेरियो में, सीन में. जैसे क्वेश्चन देखो, डू इट. इफ a plus b plus c is equals to 10 where a b c are non-negative real numbers, maximum value of a b c will be. बताओ क्या होगा भाई maximum value? Everyone be quick, be fast, tell me what will be the maximum value of a b c? $36, $37.
A plus B plus C is equals to 10. Then what is A, B, C are non-negative real number. Maximum value of A, B, C. A into B into C की वैल्यू निकाल दी मैक्सिमम. तुम लोग क्या मतलब सो रहे थे क्लास में क्या? नितेश, विशेष. What I have told. Just look at the result. 37 or 38. How you have got this number? Priyanshu, well done. Kritika, wonderful. Everyone, Sakshi, Divya, Ayush, good. That's the answer, man. That should be the answer. Yes में कुछ नहीं है जब सामने रिजल्ट भी लिखा हुआ है. For all positive values, the sum of the variable is constant. A plus B plus C is equals to 10 बराबर है. A plus B plus C equals to 10 के बराबर है. और तो पूछा गया कि A into B into C का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. इसके लिए जरूरी तीनों इक्वल होने चाहिए. A, B और C तीनों बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो बराबर का मतलब है तीनों 10/3 10/3 10/3 में तभी तो तीनों बराबर होंगे. ठीक है. 10/3 10/3 10/3 होंगे तभी तो ये बराबर होंगे. When all have to be equal means A को 10/3 बनना पड़ेगा, B को 10/3 और C को 10/3 बनना पड़ेगा, तभी तीनों इक्वल होंगे. तो इनका मैक्सिमम क्या होगा? A into B into C maximum will be occur when 3 will be equal. So this will become 10/3 into 10/3 into 10/3. कितना बना? 1000/27. Either you can get the directly result from AM is greater than or equals to GM भी कर सकते हो. AM will be become A plus B plus C by 3 and GM will become cube root of ABC. Now put it A plus B plus C की वैल्यू निकालो और इसको लिखने लंबा पड़ेगा. This is easier. समझ में आया? How many have got this? Now one more question. अब इसी में थोड़ा सा ट्रिक करते हैं. I don't know why आजकल तुम लोग की तरफ भी लाइट ज्यादा जा रही है क्या? There is power problem, power outage problem to any one of your side in Banaras. It is creating a lot of problem right now. मैं जब भी क्लास ले रहा हूँ तब भी लाइट चली जा रही है. समझ नहीं आ रहा है. Okay. पता नहीं क्या होने वाला है, समझ नहीं आता है. चलो मैं लिख रहा हूँ if A plus B plus C is equals to 15 where A, B, C are positive variables. ठीक है. Find the maximum value of A into B plus 1 into C plus 2. Now this is the question. A plus B plus C की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. A plus B plus C is equals to 15 दिया है और तुमसे पूछा जा रहा है कि A into B plus 1 into C plus 2 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ. यही इसी बात का इंतजार था मुझे. Yes, I am waiting for you guys. Really. 5 into 6 into 7. Everyone is wrong. गलत है. 210. 210 नहीं आएगा. कुछ और सोचो. 210 is a wrong answer. Everyone have to think on any other line.
चलो मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे, तुम लोगों ने क्या गलती किया है, लेट्स फील इट, महसूस करो। यहाँ पे दिया है भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15, ठीक है। जब मैं a इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू पूछता था, तब यू कैन डिस्क्राइब इट कि तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब 5 इंटू 5 होना चाहिए, तब आपने डायरेक्टली रिजल्ट से इसको 125 लिख दिया। इस बार मैंने a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15 ही दिया है, लेकिन मैं पूछा हूँ a इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 2 की वैल्यू मैक्सिमम बताओ कितना होना चाहिए। फिर तुम लोगों ने क्या किया कि ए बी सी को फिर बराबर कर दिया, लेकिन क्या जिसका प्रोडक्ट पूछा गया है और जिसका सम दिया है दोनों एक ही वेरिएबल हैं? यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे वेरिएबल a b प्लस 1 और c प्लस 2 है, और तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a b c है। मैंने क्या बोला है, वेरिएबल्स, सम ऑफ द वेरिएबल शुड बी इक्वली डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी मुझे b प्लस 1 और c प्लस 2 चाहिए होंगे, तब हम इक्वल कर सकते हैं। नाउ यू हैव गॉट इट कि यहाँ पे जो वेरिएबल a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, मुझे बेसिकली वेरिएबल सम में भी, सम वाले इक्वेशन में भी a b प्लस 1 और c प्लस 2 चाहिए, ठीक है। तो हाउ आई विल गेट इट, इफ आई विल राइट a, चलो मैं यहाँ सम भी जोड़ता हूँ, b प्लस 1 लिखूंगा यहाँ, एंड दिस विल बिकम c प्लस 2, यहाँ लिखता हूँ। नाउ ये कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और 2 मिलके कितना बनेगा, 3। तो इनका वैल्यू सम कितने के बराबर आएगा, 15 प्लस 3 कितने के बराबर आएगा, 18 के बराबर है, ठीक है। नाउ दिस हैव टू बी इक्वल, वेरिएबल्स नीड्स टू बी इक्वल। अब वेरिएबल को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों की वैल्यू इक्वल चाहिए, ठीक है। तो इक्वल होने के लिए मतलब a की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 6, b प्लस 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6, एंड c प्लस 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6। तो तीनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 6 इंटू 6, 260। 336 कैसे आ रहा साक्षी, हाउ यू गेटिंग, 6 इंटू 6 करेंगे ना। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, दिस इज वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन गाइस, एवरीवन अंडरस्टैंड दैट। अगर जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है, और नहीं आता है तो सर पीटते रह जाते हैं, पेपर में होता नहीं। एक बार और बता दें, ठीक है बताते हैं भाई, रुको। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 दिया था, जब मैंने a इंटू बी इंटू सी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तब मैंने बोला कि तीनों इक्वल होने चाहिए। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो वेरिएबल थे वही सम में भी थे, लुक एट दिस, सम और प्रोडक्ट के वेरिएबल दोनों इक्वल थे पुराने वाले क्वेश्चन में, तब हमने 5 इंटू 5 करके 125 लिख दिया था। इस बार क्या हुआ, सम दिया है a प्लस बी प्लस सी का, और प्रोडक्ट पूछ रहा है a इंटू बी प्लस 1 एंड सी प्लस 2 का। क्या जो सम में जो वेरिएबल्स हैं और प्रोडक्ट के वेरिएबल्स हैं दोनों सेम हैं, विन है, बताओ, सम और प्रोडक्ट के वेरिएबल सेम है या अलग अलग हैं? जो तुमसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है उसके वेरिएबल और सम के वेरिएबल्स एक हैं या अलग अलग हैं, different, because in sum there is a b c and in product there is a b plus 1 and c plus 2, ठीक है। तो बेसिकली मुझे सम में भी यही वाले वेरिएबल चाहिए, a b प्लस 1 एंड c प्लस 2। तो हम देखते हैं कि सम का वेरिएबल a b प्लस 1 एंड c प्लस 2 रख के सम क्या बनता है। तो a किया, b प्लस 1 किया और c प्लस 2 किया, तो अगर इसको देखेंगे तो a प्लस b प्लस c प्लस 3 आया, मुझे a प्लस b प्लस c की वैल्यू पता है, तो आई विल राइट 15 प्लस 3 दैट इज 18। नाउ क्योंकि ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब a की वैल्यू भी 6 के बराबर होनी चाहिए, b प्लस 1 की वैल्यू भी 6 के बराबर होनी चाहिए और c प्लस 2 की वैल्यू भी 6 के बराबर होनी चाहिए। एंड व्हेन वी 3 मल्टीप्लाई देम, a की जगह 6, b प्लस 1 की जगह 6 और c की जगह 6, so we will get the value as 260. Is this fine? Yes. एक और क्वेश्चन लिख लो।
if a plus b plus c is equals to 10, find the maximum value of a minus 1 b, oh, sorry, a minus 1 b minus 2 and c minus 5, where a is greater than equals to 1, b is greater than equals to 2 and c is greater than equals to 5. ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये तीनों पॉजिटिव बन सके। मैं भी बता देता हूँ कि इसमें क्यों लिखा है। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए a माइनस 1 b माइनस 2 एंड c माइनस 5 के, जबकि मैंने लिखा कि a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और c की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। बताओ आंसर कितना आएगा। और a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी हुई है 10 के बराबर। Eight by 9, Kritika. Once again, recheck it. Priyansu, wonderful, absolutely brilliant. Yes, Kritika, you are now correct. 8 by 27. Kusmuk, well done. Yes, Ayush, you have also got it. 8 by 27. Sakshi, good. Come on, guys. I need more answers. सबका आना चाहिए। तो इससे आसान मिलेगा नहीं, और इतने आराम से मैंने बताया, इतने आराम से कहीं पढ़ के तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। प्लीज टेल मी, इज इट गुड और नॉट? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 10 के बराबर। जो लोग नहीं समझे प्लीज देखो। ठीक है, अगर मैं ए बी सी का मैक्सिमम पूछता देन इट विल बी 10 बाई 3 इंटू 10 बाई 3 इंटू 10 बाई 3 होना चाहिए था, तब ए बी सी की वैल्यू बराबर होती तीनों की 10 बाई 3 10 बाई 3 10 बाई 3। ये वाला एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पूछा है a माइनस 1 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी माइनस 5 का, इसका मैक्सिमम पूछा है। तो पहली बात कि ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, तो इनका सम भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम देखते हैं क्या बनता है। a माइनस 1 b माइनस 2 प्लस c माइनस 5। नाउ दिस हैज बिकम व्हाट? a प्लस b प्लस c। दिस माइनस 1 माइनस 2 विल बिकम माइनस 3 and माइनस 5 विल बिकम माइनस 8। यही बनेगा, माइनस 8 बन रहा है। ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है गिवन एंड दैट इज 10 बाई माइनस 8, दैट इज बना 2। मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3 होनी चाहिए। मतलब a माइनस 1 की वैल्यू भी 2 बाई 3 होनी चाहिए, b माइनस 2 की वैल्यू भी 2 बाई 3 होनी चाहिए और c माइनस 5 की वैल्यू भी 2 बाई 3 होनी चाहिए। If I multiply all these, then what will be the value of minimum maximum value of a minus 1 into b minus 2 into c minus 5 कितनी बनेगी? Have you got it? 8 minus 8 by 27। समझ में आया? Everyone, tell me yes, no. Just a minute here.
please try to respond, right? Actually, it is not possible that I can individually ask to everyone. But yes, you have to collectively give me the answer yes, no, to whether you have got it or not. My screen is visible, I hope. So last question for day. If x plus y plus z plus w is equals to 29, where x, y, w and z are real numbers greater than 2, then find maximum possible value of x minus 1, y plus 3, z minus 1 and w minus 2. Give me the answer quickly so we can. Yes, come on. तुम लोग कर सकते हो. You can do it. And you guys should give me that answer instantly. Yes, wonderful. Ayush, bang on. सबका आ जाना चाहिए. कोई ऐसा नहीं हो जिसका नहीं आएगा. सबका आएगा. If you have paid enough attention in that class, you will get it. And from today onwards you can search this type of problem and you will always do it first. सबसे पहले यही करोगे. अगर एग्जाम में दिख गया, मॉक में दिख गया, कहीं भी दिख गया, तो you will do this type of question first. क्योंकि these are very easy one. जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो फिर बहुत मुश्किल है. वो कहेगा सर क्या रखें, क्या करके करें. Yes, everyone is getting correct. 2401 is the answer. That sum is given x plus y plus w, z plus w. And यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है x, y, z and w are the real numbers greater than 2. इसलिए लिखा है क्योंकि w minus 2 की वैल्यू पॉजिटिव हो, z minus 1 की वैल्यू पॉजिटिव हो, y plus 3 की वैल्यू पॉजिटिव हो और x minus 1 की वैल्यू पॉजिटिव हो. अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो जस्ट यू हैव टू चेक कि सारे जो वेरिएबल्स बन रहे हैं और नए वेरिएबल्स पूछे भी जा रहे हैं वो सब भी क्या होने चाहिए, दे आल्सो पॉजिटिव आल्सो. ठीक है. जब इनका सम दिया है तो इनका सम निकाल लोगे. x minus 1 plus y plus 3, everyone have done it I hope. z minus 1 plus w minus 2. अगर इनका सम निकालोगे तो इसकी वैल्यू होगी x plus y plus z plus w minus 1 minus 2 बना, minus 2 minus 4 plus 3. कितना बनेगा? plus 3 minus 4 and plus 3, that is x plus y plus z plus w minus 1. ठीक है. तो this will become 29 minus 1, that is 28. मतलब सबकी वैल्यू 7 के बराबर है. 7 into 7 into 7 into 7. Multiply them and get the value of 2401. This is my answer. Is this fine, everyone? So we will complete it in the upcoming class because there is one very important case. The second part of the this property has been remaining. So we will do it because there is a power outage here. There light जा रही समझ नहीं आ रहा मुझे. Laptop is running on the battery, so whenever it will be done and क्योंकि नेटवर्क का भी इशू है. जहाँ मैं बैठ के क्लास लेता हूँ वहाँ पे इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है. lot of problem in the बाकी जगह नेटवर्क नहीं आता. A lot of problem is there inside the home also. So we will resume it in the next session and we will learn how to do the second type of problem. And I will share the sheet today. I will share the sheet with you guys and just look at it. Try to look at the problem. जितना आज किया उसमें से देखना कोई मिल जाता है करके खत्म करना. नहीं तो आखिर के तो बचे हुए 2 टाइप के प्रॉब्लम होंगे मैक्सिमम मिनिमम में, तो उसको
हम लोग कंप्लीट आउट करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आई होप अलजेब्रा भी वाइंड अप हो जाएगा इन द नेक्स्ट क्लास. सो thanks everyone for this session, and we wish that everyone should revise it, should do the problems, try to understand. If any problem, come to me. So thank you everyone once again, and have a great time ahead. Stay fit, stay fine, and bye bye.